Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we have completed chapter number 6, Pressure, Winds, Storms and Cyclones from our Science NCERT book Curiosity of Standard 8. We have done this chapter in two parts, explanation, part 1 and part 2, and then we have also completed the summary as well as question answers of this chapter. Today I have come with another video with important points of this chapter. So let's start with the important points. Pressure is defined as the force applied per unit area on a surface. So this is the definition of pressure. What is pressure? Pressure is the force which we apply on a particular surface accordingly per unit area. Okay. The mathematical formula for pressure is equal to force divided by area. So when we need to find out the pressure in the numericals, we are going to put the formula that pressure is equal to force divided by the area. Whatever force we apply per unit area on a particular surface, it is the pressure. The SI unit of pressure is Newton per square meter, that is N per meter square, which is also called Pascal, PA. So when we measure pressure, we measure it in Newton per meter square and it is also known as Pascal, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका हमारे पास सिंबल है PA. When you carry a bag with narrow straps, all the weight acts on a small area of your shoulders, creating high pressure that causes discomfort. So, when we have read the chapter, I have explained you that whenever we carry a bag, जब भी हम एक बैग उठाते हैं, ठीक है, और उसके स्ट्रैप्स जो हैं वो नैरो हैं, पतले हैं, तो क्या होगा, वेट जो है वो आपके शोल्डर पे पड़ेगा, क्योंकि सारा वेट जो है वो अब स्मॉल एरिया जो है वो सारा शोल्डर्स पे पड़ रहा है, ठीक है. तो इस वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है और जिस वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होता है. व्हेन यू कैरी अ बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप्स, जब आप अपना स्कूल बैग जो जिसके ब्रॉड स्ट्रैप्स हैं, ठीक है, जिसके चौड़े स्ट्रैप्स हैं, ऐसा बैग कैरी करते हो तो जो एरिया जो वेट है वो लार्ज एरिया पे जो है वो स्प्रेड हो जाता है, जिस वजह से प्रेशर कम पड़ता है शोल्डर्स के ऊपर एंड making the bag feel more comfortable. When you are carrying that kind of bag, you will feel more comfortable instead of discomfort. So whenever you are purchasing a bag or you are carrying a bag for to your school, at that time you should take care that whenever you carry a bag, it should be with broad straps instead of narrow straps. Lifting a water bucket with a broad handle is easier than with a narrow handle for the same reason. So the same reason applies with the water bucket also. When you lift a water bucket, it should have a broad handle. उसका handle broad होना चाहिए. अगर narrow handle होगा तो आपको उठाने में discomfort होगा. But if you are having a broad handle, तो you will feel comfortable lifting a water bucket. Driving a nail with its pointed edge is much easier than hitting the nail head because the sharp point concentrates force on a very small area creating high pressure. ठीक है, किसी भी नेल को अगर आपने लगाना है, कील को लगाना है, तो उसका जो पॉइंटेड एंड, ठीक है, वो अगर आप उस पर हिट करोगे वो ज़्यादा ईजी होगा इंस्टेड ऑफ हिटिंग इट्स हेड, बिकॉज शार्प पॉइंट जो है वो उस पर आप क्या होगा, फोर्स कम लगेगी और वो जल्दी से काम करेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फोर्स कम लगेगी. A sharp knife cuts through objects cuts the objects easily because it applies high pressure on thin edge, while blunt knife spreads the force over a larger area. तो एक शार्प नाइफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को इजीली काटेगा. क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ऑन थिन एज.
और अगर ब्लंट नाइफ लोगे आप तो क्या होगा कि वो जो है वो फोर्स जो है, जो प्रेशर है, वो लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज यूज अ शार्प नाइफ, तो वो ऑब्जेक्ट्स को इजीली कट करेगा। नाउ वी विल रीड अबाउट प्रेशर इन लिक्विड्स। Liquid exert pressure on all walls of their container, not just at the bottom. तो लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सिर्फ बॉटम पे नहीं, सिर्फ नीचे नहीं, बट पूरे कंटेनर के वॉल पे, तो साइड्स में हर जगह लिक्विड जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। द हायर द लिक्विड कॉलम द ग्रेटर द प्रेशर इट एक्सर्ट। लिक्विड कॉलम जितना हाई होगा, जितना ज़्यादा होगा, ऊंचा होगा, उतना ही प्रेशर ज़्यादा आएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो जितना जो प्रेशर है लिक्विड का वो किस पे डिपेंड करेगा कि लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। Overhead tanks are placed at a height so that the pressure in the taps is increased, resulting in a good stream of water from the tap. So overhead tanks, जो घर में आपके टैंक्स लगे हैं जिसमें आप पानी भरते हैं, तो वो जो टैंक्स है उसको टेरेस पे या एक हाइट पे क्यों लगाया जाता है? ताकि आपके टैप्स में जो है वो प्रेशर इंक्रीज होकर आए और आपको गुड अच्छा पानी जो है वो मिले टैप्स से। Dams are constructed with broad base because water exerts tremendous pressure horizontally on the walls, especially near the bottoms. डैम्स जो है उनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उनका जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है, ताकि जो पानी है उस पर प्रेशर बन सके हॉरिजॉन्टली, वॉल्स पे भी और नियर द बॉटम भी, ठीक है। तो डैम्स को हमेशा कंस्ट्रक्ट किया जाता है कैसे, ब्रॉड बेस के साथ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। द एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो एयर जो है वो हर ऑब्जेक्ट पे, हर तरफ से, हर डायरेक्शन से प्रेशर को एक्सर्ट करती है। एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास जो एयर है उसमें जो प्रेशर है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द डेफिनेशन। Higher altitudes have lower atmospheric pressure because there is less air above. तो जितना ऑल्टीट्यूड मतलब जितनी हाइट जो है वो हायर होती जाएगी, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जितना हम ऊपर चढ़ाई चढ़ते जाते हैं, माउंटेन्स, जब हम माउंटेन्स पे चढ़ाई करते हैं, जितना हम हायर ऑल्टीट्यूड जाते हैं उतनी ही हवा जो है वो कम होती जाती है, तो इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि एयर भी जो है वो कम है। Measuring atmospheric pressure. Atmospheric pressure is measured using different unit. ठीक है, different units क्या क्या है यहाँ, पास्कल PA जिसका सिंबल है, it is the SI unit, then millibar MB, 1 MB is equal to 100 pascal, 1 millibar is equal to 100 pascal. हेक्टोपास्कल इसका सिंबल क्या है, HPA, it is equal to 100 pascal, that is PA. The process of wind formation. How the wind is formed. Due to heating of Earth's surface, warm air becomes lighter and rises, creating low pressure area. So I have also explained you in the explanation part कि due to heating of, जब अर्थ सरफेस बहुत गर्म हो जाता है उस टाइम पे जो वार्म एयर होती है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और राइज कर जाती है ऊपर और लो प्रेशर क्रिएट करती है। Cool air from high pressure areas flows into replace the rising warm air. तो कूल एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया में जाकर क्या करती है, वार्म एयर को रिप्लेस कर लेती है। दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्रिएट्स विंड सर्कुलेशन पैटर्न। तो ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये क्या करता है, विंड को जनरेट करता है या सर्कुलेट करता है, ठीक है। पहले क्या होता है, ड्यू टू हीट अर्थ सरफेस की वजह से, हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, वार्म एयर जो है वो लाइट हो जाती है और राइस ऊपर चली जाती है और लो प्रेशर क्रिएट करती है। कूल एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से उसको रिप्लेस करने के लिए फिर ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूशन जो है वो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, जिससे कि विंड सर्कुलेट पैटर्न्स जो हैं डेवलप होते हैं। सी ब्रीज।
ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर, ठीक है। डे के टाइम में क्या होता है, लैंड जो है वो वाटर से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वार्म एयर अबव लैंड राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर। तो जो गर्म एयर है, लैंड जब गर्म हो रहा है तो वहाँ से जो गर्म एयर है वो क्या करती है, वो राइज करती है ऊपर की तरफ और क्या करती है, लो प्रेशर को क्रिएट करती है। कूल एयर फ्रॉम द सी, हाई प्रेशर फ्लोज टूवर्ड्स लैंड क्रिएटिंग सी ब्रीज। तो कूल एयर जो है वो फ्रॉम द सी, ठंडी हवा जो है सी से हाई प्रेशर एरिया से लैंड की तरफ जाती है और इससे क्या होता है, सी ब्रीज क्रिएट हो जाता है। लैंड ब्रीज, एट नाइट वाटर स्टेज वार्मर देन लैंड। रात के वक्त वाटर जो है वो लैंड से जल्दी गर्म होता है। एयर अबव सी राइजेस, तो वो जो एयर है जो सी के ऊपर है, पानी के ऊपर है, जो गर्म है वहाँ से राइज करती है, जो कि एक लो प्रेशर क्रिएट करती है ओवर वाटर। कूल एयर फ्रॉम लैंड फ्लोज टूवर्ड्स द सी। तो कूल एयर जो ठंडी हवा है वो लैंड से सी की तरफ जाती है, क्रिएटिंग लैंड ब्रीज। दे आर जस्ट द ऑपोजिट। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स अप हीटर, ठीक है, फास्टर देन वाटर। तो वार्म एयर जो है वो लैंड की तरफ से सी में जाती है और लैंड ब्रीज, रात के टाइम पे वाटर जो है वो गर्म हो जाता है लैंड से, तो एयर जो है वो सी से, वार्म एयर जो है वो सी से जो है लो प्रेशर क्रिएट करके कूल एयर कहाँ से निकलती है, लैंड से सी की तरफ। वाई रूफ्स गेट ब्लोन अवे। Now, during storm with high speed winds, houses can lose their roofs. जो रूफ्स होती हैं स्टॉर्म्स के टाइम पे, जब तूफान आते हैं, हवा चलती है बहुत, तो बहुत हाई स्पीड पे हवा चलती है, तो हाउसेस की रूफ जो है वो क्यों ब्लो हो सकती है। हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर हाउस रूफ्स क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर देम, ठीक है। हाई स्पीड विंड्स जो है वो चलती हैं और जो हाउसेस की रूफ है वो उड़ सकती हैं। क्यों उड़ सकती हैं, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द हाउस रिमेन नॉर्मल। अंदर एयर प्रेशर जो है वो अंदर, घर के अंदर, दैट इज नॉर्मल। दिस प्रेशर डिफरेंस पुशेस द रूफ अपवर्ड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो ये जो अंदर का जो नॉर्मल एयर प्रेशर है वो इस प्रेशर को, ये जो प्रेशर है ये जो क्या करता है, ये अंदर अंदर से रूफ को पुश करता है ऊपर की तरफ, इनसाइड से। When the pressure difference is large and the roof is not enough strong, it gets blown away. तो जब प्रेशर जो है, प्रेशर डिफरेंस जो है ये इनसाइड का और आउटसाइड का, ये डिफरेंस जब लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो रूफ जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो ब्लो अवे कर जाती है, उड़ जाती है। The storm formation process. Now, how is the storm formed? Due to heating up of Earth's surface, warm moisture becomes lighter and rises and creating a low pressure area. तो अर्थ सरफेस जैसे ही गर्म होता है तो जो गर्म हवा और जो मॉइस्चर से भरी हवा होती है ये क्या होती है, लाइट हो जाती है और ऊपर राइज कर जाती है और एक लो प्रेशर एरिया बनाती है। कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया फ्लोज इनटू रिप्लेस द राइजिंग एयर। तो जो ठंडी हवा आसपास के एरिया में है वो हाई प्रेशर एरिया से जो है रिप्लेस करने के लिए राइज कर जाती है। दिस रिप्लेसमेंट एयर गेट्स हीटेड। ये जो एयर, कूलर एयर जो रिप्लेस कर रही है, ये क्या होता है, ये भी गर्म हो जाती है एंड राइजेस क्रिएटिंग कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन। इससे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस विंड जो है वो सर्कुलेट होती रहेगी। एज राइजिंग एयर एक्सपैंड एट हायर ऑल्टीट्यूड इट कूल्स डाउन एंड फॉर्म क्लाउड्स, ठीक है। तो जैसे ही ये एयर जो है वो जो राइज कर रही है बार बार, वो एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, जहाँ जहाँ पर माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, इट कूल्स डाउन, जैसे ये ठंडी होती है तो ये क्लाउड्स बन जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म हेवियर ड्रॉप्स दैट फॉल एज रेन, हेल और स्नो। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं इनके साथ मर्ज कर जाते हैं ताकि ये हैवी ड्रॉप्स फॉर्म हो और ये अर्थ पे रेन, हेल या स्नो की फॉर्म में। थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन।
स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद इन स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स के अंदर ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं वो ब्लो करती रहती हैं, अपवर्ड भी, ऊपर भी और डाउनवर्ड भी। दीज विंड्स कॉज वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स टू रब अगेंस्ट ईच अदर। तो ये जो विंड्स, जो हवा, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, इससे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ रब हो जाते हैं। रबिंग क्रिएट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। रबिंग की वजह से उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। लाइटर पॉजिटिवली चार्ज्ड आइस पार्टिकल्स मूव टू द अपर पार्ट ऑफ क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के ऊपर वाले पार्ट में लाइटर जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो मूव कर जाते हैं। हेवियर नेगेटिवली चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड्स। तो हेवियर पार्टिकल होते हैं, जो हेवियर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, वो लोअर पार्ट में चले जाते हैं क्लाउड्स के। दिस क्रिएट्स चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड। अब क्लाउड के अंदर ही जो है वो चार्ज होता है, जिसे बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। Now lightning formation. Air acts as an electrical insulator and prevents opposite charges from meeting. ठीक है, एयर जो है वो एक इंसुलेटर है। वो क्या करती है कि जो ये जो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इनको मिलने से बचाती है। When charge become very large, air break down. जब चार्ज ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव भी बहुत फैल गए, नेगेटिव भी बहुत फैल गए, क्लाउड पूरा भर गया, तो एयर भी जो है वो कुछ नहीं कर पाती। A sudden flow of charges take place, creating a bright flash of light called lightning. तो एक अचानक से सडन से फ्लो ऑफ जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो हो जाते हैं और एक लाइट सी हमें नज़र आती है जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग, बिजली कड़कना। इट कैन अकर विद इन अ क्लाउड, बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स और ग्राउंड। तो ये कहाँ हो सकती है, क्लाउड के अंदर हो सकती है, क्लाउड्स के बीच में हो सकती है, या क्लाउड और ग्राउंड के बीच में हो सकती है। थंडर फॉर्मेशन। Lightning rapidly heats the air around it to extremely high temperature. जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो वो क्या करती है, आसपास का जो आसपास जो एयर है उसको गर्म कर देती है बहुत हाई टेम्परेचर पे। दिस सडन हीटिंग कॉजेज एयर टू एक्सपैंड। इस वजह से एयर जो है वो एक्सपैंड हो जाती है इस हीटिंग की वजह से। द एक्सपेंशन क्रिएट्स द लाउड साउंड एज थंडर। तो ये जो एयर एक्सपैंड होती है उसकी वजह से जोर की आवाज आती है जिसे हम बोलते हैं थंडर। एंड दीज आर द स्टेप्स फॉर थंडर फॉर्मेशन। आई हैव रिटन स्टेप्स फॉर एवरी थिंग ओवर हेयर, लाइक लाइटनिंग, thunderstorm. Okay, so I have given steps for every formation over here in the important points, so that you are aware of each and every formation. Then regional name for thunderstorm. Now we have regional name, that is Kal Boishakhi. In West Bengal, Bihar and Jharkhand, we call thunderstorm as Kal Boishakhi. Then Dosila in Assam, mango showers in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, they help in mangoes ripening. Then coffee showers in Karnataka helps coffee plant to grow. Okay, so these are some regional names for thunderstorms. How lightning conductor work. Now we are talking about lightning conductor, that what it is and how does it work. A metallic rod is installed along the walls of building. So it is a metallic rod which is installed along the walls of building. बिल्डिंग में इसको मेटालिक रॉड को इंस्टॉल किया जाता है। इसका एक एंड जो है इज पॉइंटेड एंड केप्ट हायर देन द बिल्डिंग्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, एक एंड इसका पॉइंटेड होता है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लगाया जाता है बिल्डिंग के, और जो द अदर एंड इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और जो दूसरा एंड होता है वो ग्राउंड में बरी किया जाता है। The rod provides an easy path for electrical charges to flow safely into ground. तो जो ये रॉड है, अगर कोई लाइटनिंग होती है तो उससे बिल्डिंग को बचाती है। कैसे, ये रॉड जो है एक इजी पाथ
देती है, एक पाथ देती है, एक रास्ता देती है, ताकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो सीधे ग्राउंड में चले जाएं, बिल्डिंग पर नहीं है। Formation of cyclone. Now how cyclones are formed? As moisture rises, water vapor condenses into raindrops and ice particle. जैसे moist और warm air rise ऊपर की तरफ चली जाती है, water vapor जो है वो condense हो जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, रेन ड्रॉप और आइस पार्टिकल। ड्यूरिंग कंडेंसेशन, जब ये ठंडे होते हैं, हीट इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, वापस से दोबारा से जो गर्माहट है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। दिस एडिशनल हीट क्रिएट्स वेरी लो प्रेशर। ये जो हीट है, ये जो एडिशनल हीट है, एक्स्ट्रा हीट है, ये लो प्रेशर को क्रिएट करती है। जहाँ भी हीट होगी, वार्म होगा, मॉइस्ट होगा, वहाँ पर लो प्रेशर होगा और एयर हमेशा राइज करेगी। एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर रीजन्स रश इनटू रिप्लेस द राइजिंग एयर। तो इस राइजिंग एयर को रिप्लेस करने के लिए जो है वो कूल एयर, आसपास की जो कूल एयर है वो हाई प्रेशर से रश करती है ऊपर की तरफ रिप्लेस करने के लिए। अर्थ रोटेशन कॉजेज दिस मूविंग एयर टू स्पिन, क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन। तो ये जो स्पिनिंग सिस्टम है, अर्थ जो है वो रोटेट करती है, ठीक है। तो ये मूविंग एयर जो है, स्पिनिंग सिस्टम जो है क्लाउड्स का, विंड्स का और रेन का, इससे क्या फॉर्म होता है, इससे साइक्लोन फॉर्म होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? द आई ऑफ द साइक्लोन, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड आई। जो सेंटर पार्ट जहाँ पे साइक्लोन डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं आई। दिस इज द रीजन ऑफ लोएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस रीजन में सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कहाँ पर, सेंटर में। द आई हैज काम विंड्स एंड क्लियर स्काई। तो जो आई होती है, जो सेंटर होती है, वहाँ पर काम विंड्स जो है वो काम रहती हैं और स्काई भी क्लियर होता है। Destructive effects of cyclone. So what are the destructive effects of cyclone? Strong winds can reach speeds of 270 किलोमीटर पर आवर। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं विंड्स कि इनकी स्पीड जो है वो 270 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। These winds can uproot trees and destroy building. तो ये विंड्स जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, साइक्लोन विंड, कि ये किसी ट्री को अपरूट कर सकती है, मतलब रूट्स से, जड़ों से जो है वो गिरा सकती है और बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। पावर लाइंस गेट डैमेज्ड कॉजिंग पावर फेलियर। तो पावर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी इशू भी हो सकता है साइक्लोन के आने से। डेब्रिस ऑल्सो बिकम्स डेंजरस। डेब्रिस जो लेफ्ट ओवर रिमेन रह जाते हैं या मलबा रह जाता है किसी भी डिस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है, उसको बोलते हैं डेब्रिस। तो वो भी डेंजरस हो सकते हैं बिकॉज दे गेट मिक्सड अप विद द सॉइल, ठीक है, मेकिंग इट इनफर्टाइल। तो सॉइल जो है वो भी इनफर्टाइल हो सकता है। Then it can damage the other things also, like it can pollute the water also. So these are the destructive effects of cyclones. So with this, all the important points I have covered of this chapter. I hope you have understood all the important points, and all the points will be useful to you when you will study for your exam, or when you will study this chapter. If you are liking my videos, please do subscribe my channel and share your valuable comments with me, and do share my videos with your friends. Now I'll come up soon with my next video, where I'll get the extra important questions of this chapter. Up till then, take good care of yourself. Thanks for watching.